جنوبی کشیر ہندس ناہر پلوامس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز گولین ہند تبادلہ جاری حسن پور اننت ناگس مز پلسہٕ اہلکار گولین ہند نشانہ زخمن ہز دگ نویترن کن پلسہٕ اہلکار فوت علاقس مز سکیورٹی سخت تو جموں کشیر مز کورونا وائرس قہر بدستور جاری 4175 نئی کورونا معاملہ برو کن انتظامیہ طرف لوکن احتیاط ورتنچ اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جنوبی کشیر ہندس ضلع پلوامس مز کی کال برو تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ شروع سپزمژ یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ کی کال برو نائر پلوامہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد یت فورسز اہلکاروں طرف علاقس کن ین گھن واجنہ وتہ بند کرنے آمت تتہ آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز جڑپ جاری جنوبی کشیر ہندس حسن پور علاقس مز تمہ سات آز کھل بل سپزمژ یل اتہ نامعلوم بندوق برداروں طرف پلسہٕ اہلکار گولین ہند نشانہ بناونہ آو ون شام پتہ نامعلوم بندوق برداروں طرف اننت ناگ کس حسن پور علاقس مز پلسہٕ اہلکار گولین ہند نشانہ بناونہ آمت یتھ دوران سہ شدید زخمی سپد یدوے زخمی پلسہٕ اہلکار علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آو تاہم سہ زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدمتس پلسہٕ اہلکار سن شناخت علی محمد گنئی سند رنگ کرنا آمت جموں کشیر مز یہ پریت دہ کورونا معاملن مز اضافہ وچھنہ تتہ پتمن 24 گھنٹن دوران جموں کشیر مز 4175 نئی کورونا کیس برو کن آمت یتھ دوران جوم صوبس مز 1363 تو کشمیر صوبس مز 2812 نئی کورونا معاملہ برو کن آئی جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ کورونا وائرس پہ روٹ لاگنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے آمت تتہ آز جوم صوب کس ضلع جومس مز 653 ادھمپورس مز 104 راجوری مز 34 ڈوڈہس مز 166 کٹھوس مز 99 سامباس مز 55 کشتوارس مز 13 ضلع پنچس مز 51 رامبنس مز 145 تو ضلع ریاسی مز 15 کورونا معاملہ برو کن آمت یل زن کشمیر صوب کس ضلع سری نگرس مز 899 ورملس مز 475 بڈگامس مز 127 پلوامس مز 153 کپوارس مز 436 اننت ناگس مز 234 بنڈپورس مز 161 گاندربلس مز 42 کولگامس مز 299 تو ضلع شپینس مز 28 کورونا معاملہ برو کن آئے یل زن ات دوران جموں کشیر مز 5 لوکن ہند کورونا وائرس ست موت سپد یمن مز 3 ہند تعلق جوم صوبس ست تو 2 ہند تعلق کشمیر صوبس ست ونہ جموں کشیر مز یہ کورونا معاملن مز اضافہ سپدن پتہ انتظامیہ طرف ہفتہ وار لاک ڈاؤن عملہ مز ان فیصلہ ننہ آمت تتہ آز تہ جوم صوبہ سان وادی مز امہ لاک ڈاؤن اثر وچھنہ آمت وادی ہندس ضلع کۄلگوم اننت ناگ شوپیان پلووم گاندربل بڈگوم بنڈپور ورمل تو کپوارس مز یہ لاک ڈاؤنس دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن کم کاج وچھنہ آو تتہ شہر سری نگرس مز تہ صورتحال یکساں وچھنہ آمت یتھ دوران عام زندگی تھامہ سپز ہپر جوم صوبس مز تہ لاک ڈاؤن اثر وچھنہ آمت یتھ دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن متاثر وچھنہ آو یل زن انتظامی کے ذمہ داروں تو ماہروں طرف لوکن ونہ آمت تم گھن احتیاط ورتن یت زن کورونا وائرسس پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدے اصل میں ہمیں کچھ صبح سے کچھ کمپلینٹس یہاں پٹن علاقے سے آ رہے ہیں کہ جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے وہ گھوم رہے ہیں گھروں سے باہر آ رہے ہیں وہ بھی ماسک کے بغیر. یہ
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग खुद नहीं सोच रहे हैं, ज़मीर इनका उजागर नहीं हो रहा है कि वो तो एक तो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और जो इर्द गिर्द उनके लोग आते हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेहरबानी करके, अगर हमने आपको कोविड पॉजिटिव करार दिया और अगर हमें आइसोलेशन में हमने आपको रखा है, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट एक हफ्ते आप होम आइसोलेशन बैठिए, अपने आप को आइसोलेट करिए, तो एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम आपको खुद ही से छोड़ेंगे कि भाई आप बाहर जा सकते हो। तो मेहरबानी करके ये हम पे भी मेहरबानी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मेहरबानी करिए कि आप घरों से बाहर। श्रीनगरस मज रात म्यूनसिपल कमेटी हज कार्रवाई पत् सोशल मीडिया पे अमि कार्रवाई हज सख्त मजम्मत करना आई। तत SMC हंद मेयर जुनेद अजम मुतवन वोनमुत जे अकिस साजिश तहत म्यूनसिपल कमेटी खिलाफ मुहिम शुरू करना आमज। ये जुनेद अजम मुतवन यह कथ वन तत मुतासर रेड वल वोनमुत जे म्यूनसिपल कमेटी हंदो एहलकारों तो जिम्मेदारों तरफ तिमन सत ज्यादती करना आमज। एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे जिसमें SMC की एंटी एनक्रोचमेंट विंग गोनी खन में एक जो दुकानदार साहब हैं उनके दुकान के बाहर एक पटरी लगी है, उससे कन्फिस्केट करके इम्पाउंड करके सामान ले रहे हैं और वो गाड़ी के पीछे भाग के कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। दो तीन चीजें पहले क्लियर हों, वो स्ट्रीट वेंडर नहीं है, उनकी दुकान है वहां पे उस मार्केट में, और बहुत बार उनसे बताया गया जो दुकान के बाहर पटरी लगती है उसको साफ रखा जाए लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए, और वो लगभग 10 से 12 फीट की सड़क भी उन्हें एनक्रोच की थी। मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मेरे पास खाली 1 फुट जगह है वहां, जो अब उसी 1 फुट के बाहर में माल लगाता हूं और अपनी बेटियों को पालता हूं, उनको पढ़ाता हूं, जबकि मेरी बड़ी बेटी इसी पर डॉक्टर है, दूसरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई नौकरी नहीं है उसके पास। इस वक्त नमाज का टाइम था, मुझे पता है लॉकडाउन 12 बजे 1 बजे हो जाएगा, तब तक कुछ बेचूं, लेकिन मैंने 200 रुपए कुल सामान बेचा था। नमाज का टाइम था, मैं बंद कर रहा था, अब मैं बंद करके उसको ऊपर चढ़ा, पीछे से आगे उन्होंने लूट मचा दी। मैं पागल हो गया, करूं क्या? आजकल 100 रुपया कमाना मुश्किल होता है, आपको तो सब पता है, बाजार का एक दिन खुला होता है, 10 दिन बाद होता है। अभी वादी मज इंतजामिया तरफ गाड़ियों पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागन बापत हुक्मनाम जारी करना आव। तत SSP ट्रैफिक सिटी अमे हवाल कत करान वोनमुत जी यह प्लेट नस्ब करने सत हेकि गाड़ियों हज हिफाजत मजीद यकीनी सपदित। देखिए, ये जो HSRP जिसको कहते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर इशू हुआ था, ये काफ़ी देर पहले कि 2019 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ जो बेची गई थी उनमें मैंडेटरी है कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स एफिक्स किए जाएं। इससे यह है कि एक सेफ्टी भी रहती है गाड़ी की, टैम्परिंग नहीं होती है नंबर प्लेट की, और जो डिफरेंट फैंसी टाइप्स के जो नंबर प्लेट्स हैं डिफरेंट किस्मों के लोग यूज़ करते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। दूसरा है कि क्योंकि इसमें स्टिकर भी लगता है तो इसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि एक जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी ये ठीक है, और हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना गाड़ी ना ईजी रहता है। तो दिस प्रैक्टिस इज़ इन वो, ये काफ़ी देर से चल रही है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ रहेगी लोगों से कि जिसने अपनी गाड़ी में अभी तक ये HSRP वाला नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो मेहरबानी करके RTO ऑफिस कांटेक्ट करें, तो अपना जो है जल्द से जल्द अपना जो है गाड़ी का ये नंबर प्लेट चेंज कराएं। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन आज कयान दफ्तरन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कयान दफ्तरन हंद कामकारुक जायजा हो, तत तिमो वोनमुत ड्यूटी निश गैर हाजिर मुलाजिमन खिलाफ यह सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न, युत जन इंतजामिया कामकार मजीद बेहतर बनाने यी। देखिए, गवर्नमेंट के बहुत क्लियर आदेश हैं। एक सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है और रेगुलर ड्यूटीज़ वो अटेंड करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के सिलसिले में आज सभी ऑफिसेज़ का अचानक दौरा किया गया। जो कुछ मुलाजिम एब्सेंट पाए गए अनऑथराइजेडली, सख्त उनकी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल
रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है और जहाँ जहाँ कोई मुलाजमों की तरफ से अनऑथराइज्ड एब्सेंस की कंप्लेंट्स आएंगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलगाम आज खड़वनी इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयमन महकमन हिंद जिम्मेदार त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जारी तमीराती कामन हुंद जायजा हेत तत तिमो मुतलिका अफसरन हिदायत दितमित जे काम मज गछ वुस अन्य यीन युद्ध जन यम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्तस पर मुकम्मल सपदित आम लूकन हिंद नाव वक्फ करनी यन। आज जो मतलब खड़वी एरिया का जो आज दौरा किया गया, कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ थे। इस इलाके के कुछ जो बुनियादी मसाइल जैसे कहीं पे कुछ रास्तों के मसाइल थे या लेन और ड्रेनेज के मसाइल थे, उनको ऑन स्पॉट देखने के लिए और हम गए थे। बहुत कुछ ऑफिसर्स भी मेरे साथ थे, जैसे आरएनबी दूसरे जो डिपार्टमेंट और इसमें जो मुकामी तहसीलदार है वो भी साथ थे। तो यही चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों। खुशबाग वर्मलिस मज ये रात से खालनस दौरान नसीर अहमद हिलाल अहमद मल्ला नावक ज नौजवान घर के आब सपद ये दौरान शाम पत अकिस नौजवान सज लाश बरामद करना आमज तत आज सुबह दोमिस नौजवान सज लाश त दरियाव मज बरामद करना आमज यम पत लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाकिन हवाले करना आई। यपर तिहद नमाज जनाजा आबई इलाकस मज अदा करने पत तम सुपुर्द लाद करना आई तत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज मुतासर अयालस गस इमदाद करने युन युद्ध जन तिमन दह गुजारनस मज मुश्किल बेहतरीन पेन। चूंकि इन बचन सत अगर गोस कह मदद मिल यम गरीब बच इन कर वाह तहसीलदार साहब ये तम दुत वाद बह कर पूर मदद डी साहब तरफ दुत तम वाद बह कर मदद तो वो डी तहसीलदार साहब क्या मदद कर इन गरीबन खत अगर वत पकान गवर्नमेंट मुलाजिम वत सख्ती करान दुतुक सुबह तकरीबन 2 घंटन पकन त्रक 3-4 जायन कर बंद लॉकडाउन हो मगर हो सोची नमन जान आबस मज खालान 2 घंटन कर जाय बंद घंटस खंडस कर बेकि जाय बंद पत पे तिम बड़न अफसरन गो फोन कर अद तमो इजाजत तक अत त्रक वत 10:30 बजे वात 8 बजे 7:30 वत पे 10:30 बजे दून का योत अद कर पे 1 घंटस मज लाश रिकवरी तो खत वापस बगैर बगैर मे वो ना 2 महकम पुलिस तो बे एचडीआर आप क्या वन यम कह महकम कहन महकम वुच मे बस बराबर इन गंटन अति सत गाइडेंस करान कित पे क्या कर तो द्रंग टंगमर्ग मज ये हाल टूरिस्ट गाइड पुरस्कार पे लापता सपदन पत जहाँ बहक सपुत तत आज गुलमर्ग टूरिस्ट एसोसिएशन तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत यह दौरान एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आई ज मुतासर अयालस गज भरपूर इमदाद फराहम करने युन युद्ध जन यह अयाल फागकशी करनस पे मजबूर सपदे। हमारा यहाँ पर आज जो ये प्रोटेस्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है जो कुछ 4 दिन पहले यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक गाइड की डेथ हो चुकी है, हम उसी के बारे में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं पहले से ही, क्योंकि जो भी रेस्क्यू उन्होंने किया है हमने खुद देखा है, उन्होंने बहुत ही मेहनत से रेस्क्यू किया है, जान लगा के उन्होंने रेस्क्यू किया है। लेकिन हमारा यही डिमांड रहेगा इंसाफ होना चाहिए और जो कुछ हुआ है जो जिस फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। एज अ प्रेसिडेंट हम मैनेजमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा राइट तरीके से होगा और इंसाफ हम यही डिमांड करते हैं कि हक और इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए और इसको तो 100% इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिरदौस अहमद भट्ट कल मिस हुआ, हमसे छूट गया, वो हमारा भाई है। हम यही चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए कि फिरदौस अहमद भट्ट जो टूरिस्ट गाइड था, टूरिस्ट हमारी शान है, लेकिन टूरिस्ट को हम कंधों पे लेके घुमाते हैं, गुलमर्ग की सैर करवाते हैं। अब ये लड़का हमसे छूट गया। हम चाहते हैं जो भी काम पुलिस ने किया उसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी यही जनवन मांग है कि फिरदौस अहमद भट्ट जो है उसके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। कल के डेट में ऐसा ना हो कि हमको रोड पे आने की जरूरत पड़ जाए। ये हमसे मोतबाना गुजारिश।
हम ये चाहते जो कल यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पर गुलमर्ग में काम करते पिछले 4 साल या 5 साल से, वो एक ट्रैकिंग पर जा रहा था कस्टमर के साथ, जो बाहर के यहाँ पर से आते हैं या टूरिस्ट सैर करते हैं कश्मीर वादियों में। तो गुलमर्ग से कुमडोरी से वो ड्रंग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। रास्ते में उस बेचारे को मौत हुए, जो 2 दिन से बाद उसकी लाश हमको मिली यहाँ पर द्रंग वैली में। हम ये चाहते हैं, अब उसकी फैमिली से इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, लेकिन हम ये एलजी से या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, क्योंकि उसका घर, उनसे इंसाफ, उनकी फैमिली से इंसाफ होना चाहिए। नवपुरा कलान सोपर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज वुमेन्स कॉलेज कायम करना आव, ताहम कॉलेजस ताम वत तमीर करने दौरान दशवई तरफ वत बंद करना आमज, यम किन मुकामी जमींदारन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन, युत जन जमींदारन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। कि यहाँ एक वुमेन्स कॉलेज बना हुआ है नवपुरा कलान में, तो इन्होंने ये रास्ता लिया है मंडी बाईपास से कॉलेज तक। तो इसके रोड के इर्द गिर्द जमींदारों का ज़मीन है, शाली का ज़मीन। तो इन्होंने दोनों तरफ से इसको बंद किया है रोड को। अब हमें ज़मीन में जाने के लिए रास्ता नहीं है। हालांकि हमने इस कॉलेज के लिए 100 कुछ कनाल ज़मीन दिए हैं। ये घास चराई था, इसके बीच में ज़मींदारों का भी ज़मीन कुछ कनाल 8-9 कनाल था, लेकिन अब बन चुका है, कॉलेज बन चुका है, इन्होंने रोड बंद किया है। अब ज़मींदारों को ज़मीन में ट्रैक्टर लेने के लिए कोई रास्ता इन्होंने रखा नहीं है। हम शाली बहुत ही ज़मीन में, लेकिन हमारे पास रास्ता ज़मीन में जाने के लिए नहीं है। तो अब हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, अपने गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी करके इस रोड के दोनों तरफ, कॉलेज के रोड के दोनों तरफ जो इन्होंने ये कोई क्रैश बैरियर लगाया है, इसको हटाएं, तो ताकि हम ज़मींदार लोग अपने ज़मीन पर जा सकें, ट्रैक्टर ले सकें, ज़मीन को आबाद कर सकें। बदकिस्मती से जो ज़मीन हमने कॉलेज को दी है, ये सारी ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, इस पर यहाँ के ज़मींदार काबिज थे। हमने वॉलंटियरली उस वक्त ये ज़मीन छोड़ा कॉलेज के लिए, और उसमें कुछ कनाल जैसा कि अभी परे साहब ने बताया, वो आबाद ज़मीन थी, वो भी हमने छोड़ दी। लेकिन उस वक्त हमारे साथ ये डिसाइड हुआ कि जब कॉलेज बनेगा, यहाँ जो इर्द गिर्द इसके जो पैडी लैंड है, इसके साथ हम कोई इसमें कोई हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, इसमें कोई फेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त ये दोनों साइड बंद है। बंद होने से पहले हमने एडीसी साहब सोपोर से भी रिक्वेस्ट की थी, प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। उनका कहना था कि जब आपको ये एग्रीकल्चर का ऑपरेशन करना होगा, उस वक्त हम आपको ये उस वक्त 10-12 फुट हम उस वक्त खोल देंगे, बाद में फिर बंद करेंगे। हमें समझ नहीं आया, जहाँ फेंसिंग होती है हम कैसे उस वक्त, ये तो इलीगली होगा या अनऑफिशियली होगा, हम कैसे इसके साथ छेड़ेंगे उस वक्त। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, हमारे सारे जो भी यहाँ जिसका भी ज़मीन यहाँ है, उनकी ये पुरजोर गुजारिश है एलजी साहब से, डीसी बारामूला साहब से, एडीसी साहब से, प्रिंसिपल साहब से, कि हमें 10-12 फुट कहीं ये ज़मीन जो जिसके लिए हम ज़मीन में कोई भी यहाँ मशीनरी ले सकते हैं, हमें वो रोड दिया जाए। ताकि गुजर बस्ती कारमल त्राल के लोगों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमद, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन कईयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तमें हवाले कईयाय फिर हुकामन जान फराम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद, यमकिन मुकामी लूक एहतजाज करने पर मजबूर सपन। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन कदम तुलने यन, युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। जहाँ एक साइड से दुनिया अरूज पे पहुंच चुकी है और दूसरी साइड से हमारा जो इलाका है, ये दिन ब दिन तरक्की के लिहाज से पीछे ही जा रहा है।
जैसा कि हम पिछले 20 साल से बार बार डीसी साहब के पास जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें रोड होनी चाहिए, ये पानी वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, नेटवर्क की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो लेकिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती। जहाँ तक आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है और हमारे बच्चे बिल्कुल तालीम के लिहाज से भी पस्त हो रहे हैं। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे जो मुतालबात हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो रोड को है और हमें यहाँ रोड होनी चाहिए थी, या हमें पानी की फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए थी, नेटवर्क जो इशू है ये प्रॉब्लम जो ये हल होनी चाहिए थी। लखनऊ में अस्पताल बनाया वो हमसे 4 किलोमीटर दूर है, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि जो भी फैसिलिटी आती है वो नीचे रहती है, यहाँ आती नहीं है। इसमें बहुत गांव आता है, खासड़ी आता है, करमुला नाड़ आता है, ली नाड़ आता है, बरी नाड़ आता है, लसाडार आता है, बागंदर आता है, बहुत बड़ा गांव है। इसमें एक अस्पताल यहाँ दिया जाए और एक हाई स्कूल दिया जाए, और जो पानी के नलके हैं वो जदाबूद हो गए हैं। इसमें हमारे फीटर साहिबान बेचारे जो करते हैं वो दजी लाते हैं घर से, उनसे उनको बांधते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब नलका नहीं भेजता, कोई चीज़ नहीं भेजती हमारे साथ, तो वो बेचारे क्या करेंगे। वो दिन भर ऐसे ही परेशानी हालात में कि वो यहाँ कोई आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, कोई छोटा मोटा हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर भी नहीं है यहाँ। अगर कोई किसी वक्त कोई बीमार हो जाए अचानक या किसी को लग शक जाए तो वो भी कोई हेल्थ सेंटर। मीरमल शुपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवई जिलस मज वतों पे शीन तुलनस हवाले इंतजामिया तरफ दाव कर ताहम कस्बस अंद पक महलन में शीन तुलनस हवाले कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लूकन फेरनस थोरनस मज सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मीरमलस मज ग शीन तुलनस हवाले कदम तुलन इन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। ये रोड एक लिंक रोड कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान को। इससे पहले जो बर्फ यहाँ पे पड़ी थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े हम मशहूर थे, उन्होंने एकदम तुरंत यहाँ पे बड़ी एक्शन ली थी और हर एक कोचे चाहे सड़कें थी बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता है कि उनकी नजरें शायद यहाँ नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो चराग तले अंधेरा, गुलिस्तान का ऑफिस म्यूनिसिपैलिटी के पीछे और हमारा जो है पुलिस स्टेशन, इसके पीछे जो है ना ये गली, यहाँ पे देखो बिल्कुल फिसलन है, लोगों को जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है, लेकिन फिसल की वजह से वो नहीं जा पा रहे। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जिस तरह आप पहले काम करते थे इस हिसाब से फिर से काम कीजिए। बाकी ये शोपियान का जो मेन टाउन है, ये जो ये गली है, ये मेन गली है। ये देखो ये बर्फ नहीं उठाए, R&B कहते हैं, ये म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी कहते हैं R&B है। ये मेन टाउन है, यहाँ अस्पताल भी जाना है, यहाँ मेन टाउन की यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, खाली कागजी गुड़े दो डाल रहे हैं। किस तरह की मुश्किल हो रहा है? हर किसी की मुश्किल, कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। ये मेन टाउन की मेन गली है। जाजकोट त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम यकीन दहनी सिवा कह संजीद कदम तुलन आमद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गन संजीद कदम तुलन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम यह है कि पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमें टैंकर से कुछ पानी दिया जाता है, वो भी हफ्ते में 1 दिन आता है या 2 दिन आता है, मुश्किल से वो भी बड़े बड़े अफसरों से हमें फ़ोन करना पड़ता है तब वो आता है यहाँ पे। तो जब बर्फबारी होती है तो हमें बिल्कुल टैंकर भी नहीं आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने सेंटेक्स रखी है, हर घर वालों ने सेंटेक्स रखी है। वो जब बीच बीच में आता है सेंटेक्स में पानी लेते हैं हम, तो वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 50 और 60 चूल्हे हैं, तो उनके पास कुछ लोगों के पास सेंटेक्स बिल्कुल नहीं है। और दूर दूर ये हमारी जो कम्युनिटी है ये बिल्कुल दूर दूर पर रहती है, नज़दीक नहीं है, रोड भी नहीं है। रोड है जो जिन घरों के पास रोड है वही लोग पानी लेते हैं, जिनके पास रोड नहीं है वो कहाँ से लाएंगे। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार एप्लीकेशन भी दी और गए भी बड़े अफसरों के साथ, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। आज हम आपकी वसाजत से गवर्नमेंट से फिर दोबारा रिक्वेस्टिंग करते हैं कि आप हमारा इस पानी का मसला कुछ हल कीजिए। अगर हम इधर 50 से 60 घर रहते हैं तो हमें पानी का कोई सरमाया नहीं है। अगर आज तो चिले कलान चल रहा है, जो बाहर आती है तो तब भी पानी इधर नहीं होता। लेकिन हमने बहुत बार मीडिया की वसासत से हर चीज़ से इस्तेमाल और अफसरों को ADC साहब, रैना साहब को, हर एक अफसर मुलाजिम को बोला। उन लोगों को भी पता है जी इधर पानी की किल्लत, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए कोई बंदोबस्त इधर पानी का। अगर हैंड पाइप होगा या कोई बड़ी स्कीम, वाटर स्कीम अगर आएगी तो हम
तो नाजरीन इत वोत खबरनामान दियो इजाजत खुदा सवाल।